Hello, brother. How are you? I'm all right, brother. And how about you, Sakib? I'm good. I'm good. So, Information from Keisha from NNM Alignment Center. from Kingston? Yeah, from Kingston. Yeah. Okay, so she recommended you, right? Mm-hmm. Okay, so you're looking for a car in Jamaica, right? Yeah. Yeah. I'm looking for one of the boxy. Yes. Any preferred color you're looking for? Any budget you have in mind? Um, I don't really have a budget, but I'm interested in paying 50% down and then 50 right after. Okay, so like I'm going to let you know how much it will cost you. Like I'm going to tell you the CNF price for the 2019 onwards, Toyota Voxy, with a good package and the colors, and also this price going to be the CNF cost. Okay, brother? It Mm-hmm. means the total landed price to Jamaica Kingston Port. So if you have anything else in mind you want to discuss, you can let me know. So I will find out this for you as well. Like other than Voxy, if you're looking for any car. No, right now I'm not looking for a Voxy. After that purchase and the car is delivered, I am interested in purchasing a BMW. But let's just work on the Voxy right now. Okay, not a problem. I'm going to check out this one for you and let you know what this price is going to be for you, like the CNF till Kingston Port. Yeah, Mm-hmm. I need the fully loaded package, alright? The one that has the kit. Okay, so there are some of the fully loaded packages available. That is that is Kiribati 1, 2, 3. So that's not a problem. I'm gonna share with you and let me tell you what is the procedure here. So if I show you any vehicle from the auction, right, I'm gonna let you know the CNF price for it. Then if you want any specific color or the budget you have in mind, I can just issue an invoice for you. You can make a deposit. I'm going to buy from the auction, and when you complete 50% of the total CNF cost, the vehicle will be shipped out to Jamaica, and then when it reach to Jamaica Kingston Port, you have to pay the remaining balance so I can issue the VL. This is how it works. As you know as well, because a lot of people buying from Jamaica as well. Yeah, All right, brother. yeah, alright, go ahead. Let me see what you have. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज जो है व्हाट्सएप पे रिसीव होती हैं रिगार्डिंग माय ऑर्डर्स। मैंने ये सोचा कि मैं इसको गूगल मीट पे लेके आऊँ ताकि आपको ये नॉलेज हो सके कि कैसे रियल टाइम कस्टमर को डील किया जा सकता है। अच्छा, क्योंकि मुझे 7 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, तो मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो रेफरेंस बेस पे होते हैं। रेफरेंस बेस से मुराद ये कि अगर मैंने किसी डीलर या इंडिविजुअल को गाड़ी बेची है जिस कंट्री में मैं काम करता हूँ, तो उस कंट्री में जब गाड़ी रिसीव होती है उसके जो भी मिसाल रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं, जो भी लोग हैं उनकी गाड़ी को देखने के बाद जो ऑर्डर करते हैं, उस टाइप के ऑर्डर मुझे अक्सर रिसीव होते हैं। तो मैंने सोचा इसको गूगल मीट पे लेके आऊँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कैसे इसको डील करना है। अब ये कस्टमर जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर है। अच्छा, डीलर और इंडिविजुअल में जो फ़र्क है मैंने आपको पूरे कोर्स में बताया। अगर नहीं बताया तो आप मुझसे प्राइवेट सपोर्ट में ये पूछ सकते हैं। अब इंडिविजुअल जो होता है वो उसके पास लाइसेंस नहीं होता इंपोर्ट का, वो किसी डीलर से जो है वो हेल्प लेता है इंपोर्ट कराने की, लाइक उसके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करता है। तो इंडिविजुअल को डील करने का फ़ायदा ये है कि आप जब उसको डील करते हो तो वो एक उस गाड़ी का एंड यूज़र होता है। मिसाल है वो गाड़ी अपने यूज़ के लिए ले रहा होता है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा चांस होता है प्रॉफिट बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है। मिसाल है उसको बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं क्योंकि वो न्यू होता है। और डीलर जो होता है वो एंड यूज़र नहीं होता, उसको रीसेल करनी गाड़ी, लाइक वो एक डीलर है, इसकी डीलरशिप जमैका में मौजूद है या किसी भी कंट्री में मौजूद है जहाँ हम बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात उसको रीसेल करनी है, तो उसके साथ आपको ज़्यादा प्राइस निगोशिएशन करनी पड़ती है। सबसे पहले आपने ये चीज़ गौर करनी है कि जिस कंट्री में आप काम करते हैं उसकी इंपोर्ट पॉलिसी जो है, मिसाल है वो कंट्री में कौन सी गाड़ियाँ जापान से आ सकती हैं, उसके बारे में आपको हाउ नाउ 100% होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जमैका में 6 साल की पॉलिसी है। 2019 से ऑनवर्ड्स की गाड़ियाँ जो हैं वो जमैका जा सकती हैं। मिसाल है अगर मैं ऑक्शन में गाड़ी बाय करने जाऊंगा तो मैं 2019 ऑनवर्ड्स 19, 20, 21, 22, 23 जो भी वो गाड़ी बाय करूंगा उस कस्टमर के लिए। कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि जमैका में 10 साल पुरानी भी गाड़ी आती है, लेकिन वो एक टैक्सी लाइसेंस, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन रेगुलर कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादातर 2019 ऑनवर्ड्स
की गाड़ी ही खरीदेंगे अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। तो आपको पॉलिसी के बारे में 100% पता होगा तो आप ही इंडिविजुअल कस्टमर को डील कर सकते हैं प्रॉपरली। उसका ऑर्डर है 2019। मैं एज अ सेफ साइड 2019 ऑनवर्ड्स की गाड़ियाँ ऑप्शन में देखूंगा। जब मैं किसी कस्टमर को गाड़ी दिखाने जाऊंगा तो उसके लिए मुझे पहले उस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। सबसे पहले किसी भी क्लाइंट के साथ आप डील करें उससे उसका बजट पूछना है। सेकंड, उसको किस टाइप की गाड़ी पसंद है। मिसाल है उसको हाई फंक्शंस के साथ गाड़ी चाहिए या लो फंक्शंस के साथ चाहिए। इसको हम कहते हैं कि लोडेड चाहिए या बिल्कुल बेसिक पैकेज चाहिए। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने ऐसे कलर्स दिखाने जो आप ऑक्शन से बाय कर सकते हैं। ठीक है, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया। अच्छा, 2019 की वॉक्सी जब मैं ऑक्शन में सर्च करने जाऊंगा तो मुझे उसके चेसी कोड से ये मालूम होना चाहिए कि उसके पैकेजेस कौन से हैं। ठीक है, अब कौन से चेसी के अंदर 4 व्हील ड्राइव आता है, कौन से चेसी के अंदर लोडेड पैकेज आता है, कौन से में हाइब्रिड आता है। अच्छा, ये चीज़ मैंने कोशिश की आपको बताने की, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो आपने हर एक गाड़ी को, मिसाल के तौर पर जिस भी कंट्री का आप सिलेक्ट करते हैं उस कंट्री में अगर आपने गाड़ी बेचनी है उसकी मोस्ट डिमांडेड गाड़ियाँ उसके चेसी कोड से याद भी कर सकते हैं, और आप उसको रोज़ अगर ऑक्शन में देखेंगे तो आपको वैसे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मिसाल है, अब उसका क्लाइंट का ऑर्डर है कि मुझे एक एडवांस पैकेज चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हों। तो मुझे ये पता है कि ये ZR80G जो है वो बेसिक पैकेज है जिसको हम एक्स पैकेज कहते हैं, जिसके अंदर की स्टार्ट और बहुत सारे फंक्शंस मौजूद नहीं होंगे। अब मुझे पता चल गया कि भाई मुझे मेरे क्लाइंट का जो ऑर्डर है वो एक एडवांस पैकेज से रिलेटेड है। मिसाल है उसको हाई फीचर्स चाहिए गाड़ी के अंदर। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको फ़िल्टर आउट करता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैं ZR80W पे फ़िल्टर करके सर्च करूँ। देखें कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा भी एडवांस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो प्राइस होती है वो बहुत हाई चली जाती है। फिर आपके लिए बाय करना बहुत मुश्किल होता है। ये ढूंढनी कि मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा कि लोडेड पैकेज चाहिए। अब लोडेड पैकेज को फ़िल्टर आउट कैसे करना है, मैंने ये ZR80W सर्च किया तो मेरे पास सारे के सारे जो एडवांस फंक्शंस वाली गाड़ियाँ हैं, जैसे कि इसके पैकेजेस आप मुराद ले ले तो ZS किरमा की इसके एडवांस फंक्शंस है, जो ऐसे आप पिक्चर में भी इसके देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हाई फीचर्स हैं। मिसाल है पुश स्टार्ट, स्लाइडिंग डोर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जो आपको स्ट्रेट अवे बजट बता देंगे, कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा, उसके लिए आपने प्राइसिंग निकाल के देनी है। अब उसको कैसे निकाल के दे सकते हैं, सबसे पहले आपने आना है इस ऑक्शन के अंदर जो कि डमी ऑक्शन है, जो कि आपको सबको प्रोवाइड हुआ है ऑलरेडी, मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है। आपने उसकी सेल स्टेट्स के अंदर आना है और पास 3 मंथ्स की सेल स्टेट्स देखनी है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मैं जितना जाऊँगा तो ये बहुत लंबी सी वीडियो हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको इस चीज़ों के बारे में बताता रहूँ। 2019 मैंने फ़िल्टर आउट कर दिया। ठीक है, अब मैंने 2019 फ़िल्टर आउट किया वॉक्सी का तो मेरे पास सारे पैकेजेस आ गए और मुझे ये पिछले 3 महीने का डाटा बता रहा है कि ये गाड़ी कितने में सोल्ड आउट हुई है ऑक्शन के अंदर। ये मेरे लिए इतनी ज़रूरी है क्योंकि मैंने जब गाड़ी बाय करने जानी है ऑक्शन से तो मैंने क्या करना है, मैंने उसके कलर्स देखने हैं कि अवेलेबल कलर्स कौन से ऑक्शन में। मिसाल है मैं देख रहा हूँ कि पूरे 3 महीने में वाइट कलर बहुत आया, तो मैं ये चांस ले सकता हूँ ये गाड़ी कस्टमर को दिखा दूँ। मैंने देखा है इसमें ब्लैक कलर वाइट कलर दिख रहा है बहुत, तो मैं ये भी चांस ले सकता हूँ कि मैं उसको वाइट और ब्लैक दोनों कलर दिखाऊं। अब मैंने ऐसा कलर देखना है जो कि 3 महीने में एक ही दफ़ा आया है, तो अगर मैं उसको कोड कर दूं और उसको पसंद आ जाए क्लाइंट को तो वो दोबारा नहीं आए तो वो आपका ऑर्डर कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो कभी बाई नहीं हो सकेगी ऑप्शन में, या होगी तो बहुत ही मुश्किल से होगी जिसकी वजह से आपका क्लाइंट जो है वो कट भी सकता है। अब ये देखें, ये आपके सामने पिक्चर से ही मैं बता सकता हूँ ये बेसिक पैकेज है। ठीक है, अब है भी ये 4 व्हील ड्राइव, ये एक्स पैकेज है। अब पहला कलर देख लिया, सेकंड प्राइसिंग देख लिया। हमने ये देखना है कि क्लाइंट को चाहिए एडवांस फंक्शन। एडवांस फंक्शन की अगर मैं सेल स्टेट्स देखूं तो मुझे बहुत सारी डिफरेंट प्राइसिंग दिख रही है। मिसाल है 1.8 मिलियन येन में सोल्ड आउट हुई है 19 की ZS पैकेज वॉक्सी में। ये देख सकता हूँ कि भाई हाँ, ये एक प्राइस मुझे समझ, लेकिन मैं दूसरे एंड पे देखूँ तो मुझे 2.3 मिलियन, 2.4 मिलियन, 1.9, फिर इसके बाद 1.13 मिलियन की भी गाड़ी जो मुझे देखिए कि ऑक्शन में सोल्ड आउट हुई। अब 1.1 मिलियन की गाड़ी है तो मैंने इसकी ऑक्शन शीट देखनी कि इसकी कोई तो रीज़न होगा कि इतनी सारी प्राइसेस के बाद ये प्राइस एकदम से कम हो गई। तो उसके लिए ये पूरी ऑक्शन शीट आपको पढ़ना मैंने सिखाई है।
कोशिश करें, सबको एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या ऐसी वजह है कि ये प्राइस कम है। ऐसे फ़ौरन से जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल है, मैंने देखा कि भाई 1.3 मिलियन की गाड़ी है, मैंने फ़ौरन कस्टमर को कोट कर दी। नहीं, पूरी 3 महीने की एनालिसिस करनी है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना बड़ी ज़रूरी है कि जो जनवरी से लेकर मार्च तक की बाइंग होती है ना, वो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। क्योंकि नया साल आता है तो ये जापान के अंदर जितने भी ऑक्शन हाउसेस होते हैं उनमें गाड़ियाँ एक्सपेंसिव होती हैं। फिर ये मार्च से लेकर सितंबर तक गाड़ियाँ जो होती है ऑक्शन हाउस के अंदर, वो प्राइसेस नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने सबसे पहले कलर देख लिया, दूसरी चीज़ मैंने प्राइसिंग देखी। अब मैंने फर्स्ट थिंग ऑक्शन के अंदर 3 मंथ्स का सेल स्टेट्स देखना है। ऑक्शन के 3 मंथ्स के स्टेट्स के बाद मैंने ये जज करना है कि मुझे एक रेलेवेंट माइलेज की और एक रेलेवेंट पैकेज अकॉर्डिंग टू माय कस्टमर एक गाड़ी देखनी है, उसकी प्राइसिंग। अब मिसाल है, मैंने एक बजट फाइंड आउट कर लिया कि हाँ यार ये इस प्राइस के अंदर बाय हो रही है, ये एज एन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो 1.8 मिलियन की अगर ये बाय हो रही है, तो मैंने देख लिया कि भाई मेरा अपना जो कॉस्ट, अब मेरी अपनी कंपनी की जो कॉस्ट है प्लस उसके बाद फ्रेट है एम क्यूब से, मैंने कैलकुलेट करना है। एम क्यूब से फ्रेट कैलकुलेट करना मैंने आपको पूरे कोर्स में सिखाया है। उसके बाद जब मुझे प्राइस मिल जाए तो उसको कोड करने से पहले, ठीक है। अब एवरेज प्राइस ज़रूरी नहीं है आपकी प्राइस अच्छी हो, क्योंकि एक कस्टमर आपके पास जब आएगा तो वो बहुत सारे लोगों के पास भी आएगा। आपकी मार्केट की प्राइस $25,000 चल रही है, आप उसको $35,000 कोट करेंगे तो वो कस्टमर कभी भी आपसे बाय नहीं करेगा, ठीक है, भले आपका बड़ा अच्छा रेफरेंस भी हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कंपैरिजन करना पड़ता है। आपकी मार्केट में दो बड़े यूज कार एक्सपोर्टर्स हैं, एक है एसबीटी जापान, एक है बी फॉरवर्ड जापान। अब ये दोनों जमेइका में गाड़ियाँ बेचते हैं। अब मैंने देखना है कि भाई मुझे मेरे क्लाइंट ने 2019 की वॉक्सी मांगी है। अब वॉक्सी मुझे क्लाइंट के लिए निकालनी है तो जाहिर सी बात है, तो मैंने ये देखना पड़ेगा ये जो जॉइंट एक्सपोर्टर्स है वो कितनी प्राइस की बेच रहे हैं। अभी आप एसबीटी जापान की वेबसाइट पे आए, आपने देखा भाई 2000 फिल्टर लगाया 2019 की वॉक्सी, अब 219 रिजल्ट्स आपके सामने आ गए। अब उनके अंदर आपने एक चीज़ देखनी है, ये जो सामने आपको पिक्चर दिख रही है ना, चलो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये जो सामने ये पिक्चर आई है, आपने वो पिक्चर या वो स्टॉक देखना है जो कि ऑक्शन से बाय हुआ हुआ है। अब इससे मुराद ये है कि ये जो सामने स्टॉक दिख रहा है ये जापान में डीलर स्टॉक कहलाता है, जो कि मैंने आपको कोर्स में डिटेल में बताया। आपने इसको कंपेयर नहीं करना अपनी प्राइसिंग से, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो आप इसको कंपेयर करने चाहेंगे तो आप कभी भी गाड़ी बाय नहीं कर सकते। आपने जो देखना है वो आपने ऐसा स्टॉक देखना है जो कि ऑक्शन से बाय हो। जिस तरीके से मैंने आपको कोर्स में बताया कि ऑक्शन से जब बाय होता है तो यार्ड में जब आपकी गाड़ी आती है तो उसकी एक फोटोग्राफी वगैरह होती है, तो वो उसकी पिक्चर्स अलग होती हैं। वो किस तरीके से होती हैं, अभी आपने सामने देखा तो ये गाड़ी जो है ऑक्शन से अभी बाय हुई है, अभी यार्ड में नहीं आई, तो इसकी ये पिक्चर्स जो है वो अवेलेबल है, तो इसने इस पिक्चर्स को अपलोड कर दिया। अब ये पिक्चर्स या तो यार्ड वाली पिक्चर्स को देख के आप कंपेयर कर सकते हैं। सामने देखें ऑक्शन की पिक्चर है, ठीक है, ये भी ऑक्शन से बाय हुई, ये डीलर स्टॉक नहीं है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको फिल्टर कर देना है। मैंने देखना है कि और कौन सी गाड़ी है जो ऑक्शन से बाय होके यहाँ पर आई हुई है। अब देखें ये जो गाड़ी है ये ऑक्शन से बाय होके इनके यार्ड में आ चुकी है। अब इनके यार्ड में आ चुकी है तो ये आप 100% कन्फर्म हो जाएंगे ये डीलर स्टॉक नहीं है। क्योंकि ये हाइब्रिड है तो हमारी इससे कंपेयर करना प्राइस कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एज एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये यार्ड की पिक्चर्स है। अब देखें सेकंड चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये सामने दिख रही है, ये भी यार्ड की पिक्चर है इनकी। अब उसको कंफर्म कैसे किया जाता है, क्योंकि जब गाड़ी यार्ड में आती है तो चौक से जो है वो चेसिस आईडी उसकी जो विंडशील्ड होती है वहाँ पर लिखी जाती है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं ये एरो, ये चौक से जो विंडशील्ड के ऊपर जो है, ये चौक से या मार्केट से वट, ये लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये गाड़ी स्पेसिफिक कंट्री के लिए बाय हुई है, जैसे जमेइका के लिए बाय होगी, तो इसके ऊपर JAM और नीचे चेसिस कोड एंड आईडी पूरी लिखी हुई होगी। अच्छा, सेकंड जायंट एक्सपोर्टर है। अच्छा, अब क्या करना है, आपने यहाँ प्राइसिंग देखनी है कि अब मैंने देखा है कि $10,000 की FOB प्राइस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डेस्टिनेशन कंट्री, उस कंट्री को देखना है जहाँ पर मेरी क्लाइंट का ऑर्डर है, क्योंकि मैंने प्राइस को कंपेयर करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने जमेइका यहाँ पर फिल्टर किया, मैंने यहाँ पर जमेइका चेक इन, मैंने यहाँ पर जमेइका डाला, तो मुझे यहाँ पे अब जो टोटल प्राइस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 13,800
समथिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा अच्छा क्योंकि इस कंट्री की इंस्पेक्शन मैंडेटरी है तो ये चीज़ तो हो गई। अब इंश्योरेंस मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इंश्योरेंस ऐड नहीं करता, तो अब इसकी टोटल प्राइस में देखूँ तो मुझे देखनी चाहिए 13,640। अब मैं इसको, जाहिर सी बात है, अब मैं ये कंपेयर कर सकता हूँ कि ये सी एन एफ कॉस्ट है, ठीक है। अब मिसाल है, मेरा कोई क्लाइंट आता है कि अच्छा मैंने आपको सिर्फ एक गाड़ी को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, आप पूरी चीज़ों को डिटेल वाइज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक गाड़ी का एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल करना ये है कि मेरे पास जो है 13,640 की जो टोटल प्राइस है वो एक एवरेज प्राइस में कंसिडर कर सकता हूँ। अगर मिसाल है मैंने ऐसी कोई गाड़ी बाई करी जो कि तकरीबन $14,000 से नीचे होगी, तो मेरा कस्टमर लाइकली वो बाय करेगा। जब आप प्राइस कोट करते हैं तभी कस्टमर जो है वो फैसला करता है और वो आपको डिपॉजिट देता है, तो इसीलिए जो प्राइस जो है वो बहुत ज़रूरी है कोट करना, और अच्छी प्राइस कोट करना। तो अब $13,640 मेरी टोटल कॉस्ट आई, तो मैंने अपनी कंपनी का एम क्यूब रेट कैलकुलेट करके एक फ्रेट निकाल लिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिखाया कि एम क्यूब के थ्रू फ्रेट कैसे निकाला जाता है, आप अपने एक्सपोर्टर से एम क्यूब रेट लेके अपना फ्रेट निकाल लिया, और मिसाल है मैंने $2,500 फ्रेट निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने देखा कि कंपनी ने $1,000 प्रॉफिट रखने का कहा है, तो मैंने $1,000 प्रॉफिट रख लिया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इंस्पेक्शन की फ़ीस $230 है, माइनस मेरे कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंस फ्रॉम बाइंग टू शिपिंग, मिसाल है फ्रेट नहीं, बाइंग से लेकर शिपिंग तक, शिपिंग होने तक जितने भी एक्सपेंस आ रहे हैं मैंने वो कैलकुलेट कर लिए। मिसाल के तौर पर मेरे आ रहे हैं $1,000, तो मैंने कैलकुलेट करके मैंने इसको अपना बजट बना लिया बाइंग का, ठीक है। मैंने $8,900 के अंदर बाइंग करनी है, जब जाके मेरे पास इतने बजट के अंदर सी एन एफ कॉस्ट रेडी होगी, ठीक है। सी एन एफ कॉस्ट के अंदर जैसे मैंने कस्टमर से गूगल मीट के अंदर भी ये चीज़ कंफर्म कराई, और उसको कहा कि जो कॉल, और उसको उसको कहा कि ये सी एन एफ कॉस्ट है जो मैं आपको कैलकुलेट करना हूँ, क्योंकि हमारे काम के अंदर जो ड्यूटी इन क्लियरेंस है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। जो कस्टमर होता है वो सारी चीज़ें खुद करता है, हमें सिर्फ पोर्ट तक गाड़ी पहुंचानी है, और उसकी भी पेमेंट कस्टमर ही नहीं करनी है, वो भी 100%। अब डिपेंड करता है कि कुछ, अब डिपेंड करता है आपके कस्टमर्स पहले कितने पे करना चाह रहे हैं, बाद में कितने, लेकिन एंड ऑफ द डे 100% उसने ही करनी है। आपने पहले चीज़ कंपेयर कर लिया यहाँ से ऑक्शन से, सेकंड एसबीटी से, थर्ड सेम मेथड से बी फॉरवर्ड जापान से भी कर सकते हैं। ये भी एक जाइंट एक्सपोर्टर है जो कि बहुत पूरी दुनिया के अंदर गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया आपने देखना, ऑक्शन की पिक्चर है या यार्ड की पिक्चर है उसको देखना है। आपने डीलर स्टॉक को अवॉइड करना है, क्योंकि डीलर स्टॉक की प्राइस ऑलरेडी डबल होती है। आपकी गाड़ी अगर ऑक्शन में या कस्टमर के बजट में $10,000 आई, डीलर स्टॉक उसको $15,000 दिखाएगा, 16 दिखाएगा, तो इसमें ये होगा कि कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपने कलर्स देखने हैं, सेकंड थिंग जो आपने देखनी है वो है कि इसकी एवरेज प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, उसको कंपेयर करना है विद जाइंट एक्सपोर्टर्स। या आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्पेसिफिक कंट्री में जहाँ आप काम कर रहे हो बहुत सारी अदर कंपनीज भी काम कर रही हो, तो आप उनकी वेबसाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जितना स्टॉक एसबीटी और बी फॉरवर्ड के पास है, कंपेयर आप अगर दूसरी से करेंगे तो शायद वहाँ पर डमी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रियल टाइम स्टॉक मिलेगा। स्टॉक वर्सेस ऑक्शन मैंने आपको पूरा डिफरेंस बताया कि स्टॉक और ऑक्शन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। कैसे स्टॉक की गाड़ी बेची जा सकती है, कैसे ऑक्शन की गाड़ी बेच सकती है। जो आपके सामने ऑक्शन दिख रहा है ये डमी है, जो कि मेरी तरफ से पूरे जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स को मिला हुआ है, उसके पास अभी नहीं है तो वो फेसबुक पे जाके ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। अब लास्ट थिंग, प्रॉफिट की बात आ रही है। अगर मैं मार्केट में देखूं कि 1.8 मिलियन की अगर गाड़ी में परचेज करूंगा, तो मोस्ट लाइकली मेरा जो एक्सपोर्टर है वो मुझे $2,000 या $2,500 का कहेगा कि इसके अंदर प्रॉफिट रखना है। अब $2,500 मैंने प्रॉफिट रखा और मेरी गाड़ी स्मूथली जमेगा पहुंच गई, तो मेरा अभी तक परसेंटेज जो इसके अंदर है वो है 50%, क्योंकि मुझे जो है वो 7 साल हो गए, तो मैं जो काम करता हूँ वो 50% पे करता हूँ। मिसाल है, अगर मैं $2,500 का प्रॉफिट करूँ तो मुझे कंपनी $1,250 देगी। $1,250 की मेरे पास इनकम अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, जूम कॉल के अंदर मैंने डिस्कस किया डिपॉजिट के हवाले से, तो डिपॉजिट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जब ये क्लाइंट मुझे कंफर्म करेगा ऑर्डर का, तो मैं इसको एक डिपॉजिट इनवॉइस इशू करूंगा, जिसके अंदर मैं उससे कुछ एडवांस पेमेंट मंगाऊंगा बिल्ड करने के लिए, ताकि मैं ऑक्शन हाउस में उसके लिए गाड़ी बाय कर लूँ। अच्छा, मैंने आपको डिटेल में ये कोर्स में बताया कि डिपॉजिट इनवॉइस
क्यों ज़रूरी है, और कस्टमर को हम डिपॉजिट बेचते हैं ताकि हम उसके लिए गाड़ी बाय कर सकें ऑक्शन से। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैंने आपको जब गाड़ी बाय करके देनी है तो उसके बाद जो कंप्लीशन ऑफ डिपॉजिट है, मिसाल के तौर पर 50% एटलीस्ट डिपॉजिट कंप्लीट करना है टोटल कॉस्ट। मिसाल है $12,000 की गाड़ी टोटल है, तो $6,000 उसने सबमिट कराने हैं ताकि वो गाड़ी कंट्री में शिप आउट हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई। शुक्रिया, आज के लिए इतनी है। अल्लाह हाफिज़।